यस चलो हम लोग सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स हमारे डिलीवर हो चुके हैं और जैसे मैंने बताया इस चैप्टर के अंदर का जो कोर कॉन्सेप्ट है खास करके जेईई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज नथिंग बट यू कैन से वेज टू एक्सप्रेस द कंसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस जिसके अंदर हमने 7 to 8 फार्मूला डिस्कस किया है राइट और होप सो कि यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस फार्मूला जो हमने ऑलरेडी देखे हैं और 2 लेक्चर ऑलमोस्ट मैंने उसके लिए लगा दिया मतलब उसके साथ कुछ फंडामेंटल बेसिक फार्मूले भी लिया है तो कैन आई एक्सपेक्ट दिस फार्मूलाज आर लर्न्ड बाय योर साइड और वेरी वेल अंडरस्टूड बाय योर साइड यस प्लीज लास्ट के 2 लेक्चर वन साइडेड हुए हैं मैंने डिलीवरी किया आप लोगों ने कुछ ज्यादा बोला नहीं तो अभी तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं क्योंकि हमने जो फॉर्मूले देखे 7 to 8 फार्मूला दिस फार्मूलाज आर लर्न फ्रॉम योर साइड सो इज इट और नॉट Learned. Yes, sir. yes very good then I want a bit revision of this one from your side so anyone amongst you so knows any one of the formula please let me know come on बोलिए पहला फार्मूला कौन सा था कि हमने परसेंटेज बाय वेट एनीवन हाँ कोई भी आपका आवाज अनम्यूट करो और बोलो क्या बताता है परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला क्या है So percentage by weight is equal to weight of solute upon weight of solution into 100. very good second formula we are seen for percentage by volume which is that Volume of the solute upon volume of the solution into 100. very good that is what we are third formula is of mole fractions what is it For binary solution, Yes. x1 is equal to n1 upon n1 plus n2. That is number of moles of solvent upon number of moles of solute. Plus number Solution. of moles of solvent. yeah somewhere there is a bit confusion चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है लेकिन पहला फॉर्मूला राइट बताया आपने what is the formula for x2 then in case of binary solution So x2 is equal to number of moles of solute upon number of moles of solution. yes that means n2 upon n1 plus n2 very good furthermore we have seen next formula related with molarity please The number of moles of solute upon volume of solution in dm cube. very good that is what we have molarity is always noted by capital M okay next formula is molality Number of moles of solute upon weight of solvent in kg. very good that is what we can say molality very good now next is normality denoted by capital N is there anyone So number of equivalent Normal weight of equivalent of solute upon volume of solution in dm cube. very good that is the normality will anyone tell me what is the basic formula to calculate the equivalent weight So atomic weight upon valency. very good how we are going to calculate number of gram equivalent weights or number of equivalent weights number of equivalent weights उसी के अंदर देखा था हमने फॉर्मूला दिया है उसका भी number of equivalent weights is equal to weight of substance divided by its equivalent weight बराबर है जैसा नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वैसा ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट किसी भी वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो वो आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स मतलब कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स है ऐसा उसे कहा जाता है very good most of the formula I got it from your side and I'm happy to have this formula from your side next is nothing but you can say formality
Yes, please. Formula mass upon volume of solution in bm cube. Very good, very good. And last one is ppm, parts per million. उसके 3 फॉर्मूले देखे थे, कोई भी एक फॉर्मूला. Sir, number of moles of solute upon total number of moles of solution into 10 raised to 6. Very good. That is in the form of number of moles. Next is in the form of weight. Is there anyone? Weight of solute upon weight of solution into 10 raised to 6. Very good, very good, very good. What about volume? Volume of solute upon volume of solution into 10 raised to 6. Very good, very good. That means you got the formulas very well. You understood up to that level and you learned that formula. So it's a good thing. But one thing is also what I have, particular voices were talking, Anna, many of are at the resting position. So I expect that after 2-3 lectures, there should be some interaction. जो कर सकते हैं, खास करके formula based है, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, है ना? बहुत ज़्यादा definitions वगैरह आपको नहीं पूछे गए हैं. So expect करता हूँ. और मैंने पहले 2-3 lecture में आपको कहा कि while you are sitting in lectures, please have notebook और pen with you, ताकि कुछ formula, कुछ shortcuts, कुछ graphs वगैरह कुछ आते तो आप लोग note down कर सकते हो, है ना? सिर्फ अगर सुनते चलेंगे हम लोग मोबाइल के साथ तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा प्रिपरेशन के लिए. की पॉइंट्स आते हैं, की फॉर्मूलाज आते हैं, तो प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि नाउ हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा आपका असेसमेंट करना भी जरूरी है. और इसलिए जिस तरीके से अभी आप में से कुछ बच्चों ने काफी अच्छी तरह फॉर्मूले दिए हैं, तो दे गॉट इट वेल, दे लर्न इट वेल, एंड यही एक्सपेक्टेड कि हर बच्चा हमारे अंदर का ये इस तरीके से प्रिपरेशन करे उसको, ताकि आपको चैप्टर इजी भी लगे, टॉपिक प्रिपेयर भी हो जाए और कॉन्फिडेंस उसके साथ हमारा बढ़ता जाए. वेरी गुड. अच्छा चलो कोई बात नहीं. वी आर हियर विद सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. उसके 2 सेक्शंस होते हैं. पहले सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन, definition of solution, solute, solvent, and the types of solutions, as well as the solubility and the factors affecting the solubility, and there are different ways to express the conservation of solutions. So ये बार-बार मैं emphasize कर रहा हूँ, repeat कर रहा हूँ कि number of there are different ways to express the conservation of solutions, and then we have some 7 to 8 formulas. These formulas are very important to get through this chapter, especially for the JEE or NEET. So again and again, I am appealing all these. Please learn all this formula and try to understand these formulas and try to apply this formula to the numericals. It will become very easy, and ये chapter भी उसके हिसाब से आपका simply बनता जाएगा. Now, actually, we have to start with the second half of this chapter. That is, you can say, colligative property. But थोड़ा सा rearrange करके ये टॉपिक हमारे सामने पेश किया गया है, खास करके हमारे जो नए बदले हुए बुक है उसके अंदर देखेंगे हम लोग. तो ये जो बात है कि we have to discuss colligative properties, जहाँ पे 4 colligative property हम डिस्कस करने वाले हैं. Number 1, that is, you can say, lowering of vapor pressure. Number 2 is elevation in boiling point. Number 3 is depression in freezing point, and number 4 is osmotic pressure. ठीक है. बट उसके पहले वापस उन्होंने एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया है, जो एक्चुअली है कॉलिगेटिव पार्ट का ही पार्ट, उसी के अंदर अप्लाई करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने जनरल में पुट किया है आपकी बुक के हिसाब से. चलो वो लेते हैं, उसके साथ शायद आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काफी अच्छी तरह आपको समझ में आएगा. सो वेपर प्रेशर, खास करके वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, ये हमें दिया है. तो मस्त टॉपिक है, उसके ग्राफ है, एक बार वो समझेंगे तो बाकी सारा बहुत इजी बनेगा यहाँ पे. सो लेट्स कम टू दिस टॉपिक नाउ. वी कैन से वेपर प्रेशर. ओके, अभी सही मायने में हेडिंग देखेंगे आपकी बुक के हिसाब से, तो वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 मिसिबल लिक्विड्स, ऐसा उसका मतलब है, ऐसा उसका हेडिंग है. बट पहले वेपर प्रेशर को समझते हैं, फिर उसके बाद उसी के अंदर के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझते चले जाएंगे. ठीक है. अब ये वेपर प्रेशर नाम का कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे है, ये हमें समझना है, फिर उसके अंदर के सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. वेपर प्रेशर क्या है? लेट्स हैव वन एग्जांपल. स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड लिया है, कुछ भी लिक्विड लिया है, से इट्स वाटर हमने लिया है. ओके, और जैसे हम इस वाटर को हीटिंग करते हैं, हीटिंग करेंगे तो दिस लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा, और वो वेपर्स यहाँ पे आएंगे. मान लो इसे हमने क्लोज कर दिया लाइक दिस, इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया. से आपके घर में प्रेशर कुकर होता है, ये प्रेशर कुकर लाइक स्ट्रक्चर है ना. मतलब यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स आर नॉट अलाउड टू कम आउट, तो इसी के अंदर बंद करके रखेंगे. तो इस टाइप का ये अरेंजमेंट है. तो आपका लिक्विड का लेवल ये है, यहाँ पे आपका लिक्विड है पूरा, ये लिक्विड है. सो दिस इज नथिंग बट लिक्विड. ओके,
और जैसे हम लोग इसे हीट करते हैं बर्नर के साथ, ओके, हीटिंग करेंगे तो ये वाटर वेपर्स वेपराइज होके इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको वाटर वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज वेपर्स। हाँ, मैं वाटर वेपर्स तभी कह सकता हूँ जब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने वाटर लिया है ना। बट केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कोई भी लिक्विड यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, और जिस लिक्विड को हम हीटिंग करेंगे तो उसके वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। सिंपल वेपर्स का नहीं, यहाँ पे सिंपल लिक्विड का कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वाटर वेपर है, तो यहाँ पे वाटर वेपर्स आ जाएंगे। बट जनरल टर्म में बात करना है, दिस इज लिक्विड, और व्हेन दिस लिक्विड इज हीटेड वेपर्स आर कलेक्टेड हियर इन दिस प्लस यहाँ पे, और दिस आर नॉट अलाउड, ये क्लोज है, ये क्लोज कंटेनर है, तो वेपर्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, वेपर्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, ये कंडीशन है। नाउ स्टार्टिंग में वेपर्स थे नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ लिक्विड था, उसे हीट करने के बाद यहाँ पे वेपर्स कलेक्ट होते गए, 1 2 3 4 ऐसे कई सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते गए वेपर्स के, और यहाँ पे वेपर्स बनते गए। अभी हम अच्छी तरह जानते हैं, गैसियस स्टेट नाम का चैप्टर हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। Gaseous particles are always in continuous motion. These gaseous particles are always in continuous motion. These particles strikes on the container. इस कंटेनर के ऊपर वो स्ट्राइक होते हैं, और जैसे कंटेनर के ऊपर स्ट्राइक होंगे उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और इसीलिए ये जो प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट किया, तो ये वेपर जैसे ऊपर आते हैं यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इधर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे यहाँ पर, और नीचे भी आएंगे। जितना प्रेशर ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ प्रेशर होगा, लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा। दिस प्रेशर इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर, बिकॉज सिंपली दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, दिस इज द सिंपली प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, बट दिस इज नॉट द साइंटिफिक डेफिनेशन। याद रखिए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए साइंटिफिक डेफिनेशन ऐसा है उसका, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with liquid is known as vapor pressure. तो वेपर प्रेशर होता क्या है? It is the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with liquid. अभी in equilibrium with liquid का मतलब यह है कि जितना प्रेशर लिक्विड के सरफेस के ऊपर आता है, दिया जाता है, उतना ही प्रेशर कंटेनर के ये ढक्कन के ऊपर या कंटेनर के ऊपर दिया जाता है। That is nothing but the vapor pressure. Clear? तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है वेपर प्रेशर का? It is the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with liquid is known as vapor pressure. उसे हम लोग वेपर प्रेशर ऐसा कहते हैं। So we got this one वेपर प्रेशर, ये हम लोग को वेपर प्रेशर मिल जाता है। Clear with this now? Now हम ऑलरेडी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम ही सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के अंदर तो एक सब्सटेंस होगा नहीं, तो दिस लिक्विड हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय सॉल्यूशन। सो हम कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस सॉल्यूशन विल रिप्लेस दिस सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन आएगा तो मिनिमम 2 सब्सटेंसेस आ सकते हैं, मिनिमम 2 सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस। तो अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन मानते हैं तो कम से कम 2 सब्सटेंसेस तो यहाँ पे होंगे। सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ मतलब बाइनरी, दैट मींस इट इज हैविंग ए एंड बी। इसके अंदर 2 सब्सटेंसेस है, दैट इज सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी, और इसका ये बाइनरी सॉल्यूशन है। इसे भी हीट करेंगे तो यहाँ पे अभी 2 केस बन सकते हैं। इसे हीट करेंगे 2 केस बनते हैं, दोनों सब्सटेंस के वेपर यहाँ पे आएंगे, दोनों सब्सटेंस के वेपर यहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैटर करेगी, ये जो सब्सटेंसेस है, सब्सटेंस ए एंड बी, दोनों का भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अभी किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर नहीं है, एक्सेप्शनली कोई हो सकता है, बट नियर बाय होगा। नियर बाय मतलब किसी का 55 तो किसी का 57 हो सकता है डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में बात करेंगे, बट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। लेकिन दोनों के वेपर यहाँ पे आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तो आएंगे, तो उसे कहा जाता है बोथ आर वोलाटाइल लिक्विड, दोनों वोलाटाइल हो सकते हैं, ओके। या फिर एनी वन ऑफ देम इज वोलाटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है दैट इज कॉल्ड एज वोलाटाइल, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसे कहा जाता है नॉन वोलाटाइल। टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले एक वापस एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, मैं जहां से लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ से हेवीली रेनिंग, ओके। अगर कहीं इंटरनेट कनेक्शन या लाइट इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो दैट लेक्चर विल बी स्टॉप। आई विल ट्राई टू लॉग इन इट अगेन, बट अगर नहीं आएगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएगा, ओके, बट इट्स हेवीली रेनिंग, ओके। कम टू द टॉपिक अगेन, दिस इज द कंटेनर। इन दिस कंटेनर व्हाट वी हैव टेकन a solution, and this solution comprises of substance A and substance B. अभी इसके अंदर 3 केसेस हो सकते हैं। नंबर 1 केस, बोथ आर वोलाटाइल, दोनों भी वोलाटाइल है, मतलब हीटिंग करेंगे तो दोनों के वेपर्स बनेंगे। दूसरा, एनी वन ऑफ देम इज वोलाटाइल, सपोज A इज वोलाटाइल तो B इज नॉन वोलाटाइल। और तीसरा,
B is volatile, A is non volatile, ऐसा हो सकता है, तीन ही केस हो सकते हैं। दोनों नॉन वोलेटाइल हो ही नहीं सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई तो वेपराइज होगा, सबका कुछ ना कुछ तो होता ही है बॉइलिंग पॉइंट। सो इन दैट सेंस अभी हम ऐसा केस कंसीडर करते हैं, ऐसा केस करते हैं, ये दोनों सब्सटेंसेस वोलाटाइल है, बोथ आर वोलाटाइल, A and B both are volatile, both are volatile। इसका मतलब क्या है, both are volatile कि हीटिंग करेंगे A भी वेपराइज होने वाला है और B सब्सटेंस भी वेपराइज होने वाला है, और दोनों के वेपर्स यहाँ पे हैं, दोनों के वेपर्स यहाँ पर आएंगे। अभी दोनों के वेपर्स यहाँ पे आएंगे तो प्रेशर तो एक्सर्ट होगा, प्रेशर तो एक्सर्ट होगा, क्लियर। अभी वो प्रेशर कैसे दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर के हिसाब से प्रेशर दिया जाता है। सो प्रेशर इज इक्वल टू P1 plus P2, pressure is equal to P1 plus P2। now this is the pressure called as a total pressure या फिर solution pressure। तो कभी कभी यहाँ पे PS लिखा जाता है, कभी कभी PT लिखा जाता है और कभी नॉर्मली P लिखा जाता है। आप देखिएगा कुछ बुक्स में आपको PS मिलेगा, S रिप्रेजेंट सॉल्यूशन, कुछ बुक में आपको PT मिलेगा, टोटल प्रेशर मिलेगा, और कुछ बुक में आपको सिर्फ P मिलेगा। तीनों का मतलब एक ही होता है, दैट इज यू कैन से सॉल्यूशन प्रेशर। P stands for solution pressure, PT stands for total pressure of solution and S stands for solution pressure। तो उसका मतलब एक ही है, समझिएगा। PS का मतलब PT is equal to P, that is total pressure। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर है, इसके अंदर हमने दो कंपोनेंट कंसीडर किए, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हमने दो कंसीडर किए। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P1 plus P2। P1 is pressure of first component, that is A, okay, A, और P2 is the pressure of second component B। तो यहाँ पे हम लोग PA और PB कह सकते हैं। आप अलग अलग रेफरेंस बुक अगर यूज करते हो तो यहाँ पे PA और PB भी मिलेगा आपको नोटेशन। तो डजंट मैटर, नोटेशन डजंट मैटर फॉर अस। कंसीडरेशन ये है, हमारा कंपोनेंट A उसे 1 कहते हैं, कंपोनेंट B उसे 2 कहते हैं। सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय A कंपोनेंट, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय B कंपोनेंट, या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय फर्स्ट कंपोनेंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेकंड कंपोनेंट, and this is the total pressure of solution। सिंपल, एकदम सादा ये फॉर्मूला है कि हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट्स दिए हैं, तो दोनों वेपराइज होते हैं, तो दोनों प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। दिस इज डाल्टन्स प्रेशर, यू कैन से। ओके, नाउ अभी ये जो P1 है, P1 इज द प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, P2 इज द प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ओके, और टोटल प्रेशर इज P। नाउ ये जो P1 कहा जाता है, P1 टोटल प्रेशर के अंदर, टोटल प्रेशर इज P, उसके अंदर P1 है फर्स्ट कंपोनेंट का प्रेशर है, कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, क्योंकि दोनों पार्शियल मिला के ही टोटल प्रेशर होने वाला है। ओके, क्योंकि इसके ऊपर हम देखेंगे कंटेनर में जो प्रेशर आ रहा है, P1 का अलग आ रहा है, P2 का अलग आ रहा है, P1 अलग हो सकता है, P2 अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपोनेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो कि किसी की कार अगर बंद गिरी है, बंद पड़ी है और उसे ढकेलना है, और मानो दो लोग ढकेल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों एक जैसा ताकत लगा रहे, दोनों का फिजिकल फिटनेस अलग है, दो बंदों का, तो दोनों अलग अलग प्रेशर लगाएंगे। पहला बंदा कुछ अलग प्रेशर लगाएगा, दूसरा बंदा कुछ अलग प्रेशर लगाएगा, कुल मिला के कार ढकेली जाए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते दोनों ने सेम ताकत लगाया, कोई इंसिडेंट हो सकता है कि दोनों सेम पावर लगाया। उसी तरीके से ए का प्रेशर P1 है, बी का प्रेशर P2 है, फर्स्ट कंपोनेंट का प्रेशर P1 है, दूसरे का P2 है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दैट। तो बोथ कैन बी सेपरेट और बोथ कैन बी डिफरेंट और बोथ कैन बी सिमिलर, कुछ भी केस हो सकता है। हमने माना पहले कंपोनेंट का प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है, तो मिक्सचर के अंदर, ये मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है उसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। किसी भी मिक्सचर के अंदर, चाहे 2 हो, 3 हो, चाहे 10 गैसेस हो, डजंट मैटर, उस मिक्सचर के अंदर एक के प्रेशर को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। तो P1 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ए बोल सकते हो आप लोग। एंड व्हाट इज P2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैं फर्स्ट सेकंड बोल रहा हूं, मैं ए भी बोल रहा हूं, इट्स कम टू द सिमिलर वन, है ना। या इधर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, कंपोनेंट ए फर्स्ट कर लेते हैं, कंपोनेंट सेकंड कर लेते हैं, इट वुड बी इजियर फॉर यू देन, क्लियर। सो P1 indicates partial pressure of first component, P2 indicates partial pressure of second component, and the total indicates the solution pressure, total solution pressure. Okay, ये होता है। Now comes the Raoult's law. How we are going to calculate
द पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। किसी भी मिक्सचर के अंदर हम एक कंपोनेंट का प्रेशर कैसे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। हो सकता है कंपोनेंट 1, हो सकता है कंपोनेंट 2, हो सकता है कंपोनेंट 3 टर्नरी सॉल्यूशन में, क्वाटरनरी में फोर्थ भी हो सकता है, सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड एज रॉल्स लॉ। वी हैव हियर रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऐसा भी कहा जाता है, रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। सो रॉल्स लॉ कहना क्या है? रॉल्स लॉ इज यूजफुल टू कैलकुलेट P1 एंड इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट P2। और हम जानते हैं व्हाट इज P1 एंड व्हाट इज P2, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। P1 is a partial pressure of first component and P2 is a partial pressure of second component। ये हमारा है और हमें ये निकालना है और इसी के बारे में रॉल्स लॉ आता है। तो रॉल्स लॉ का सीधा फॉर्मूला ऐसा आता है, P1 is equal to P1 not x1 और P2 is equal to P2 not x2, जिसके अंदर this P1 not is nothing but pressure of pure component first or x1 is nothing but mole fraction of first component ये होता है दोस्तों। अभी इस बात को समझ रहे हैं कि what's happening here? This is Rolle's law of partial pressure. This is also Rolle's law of partial pressure. Here partial pressure of first component is calculated, here partial pressure of second component is calculated. This is according to Rolle's law of partial pressure. Rolle's is the name of scientist who put forth this law. तो इसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी आते हैं और ये टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या मैंने बताया कि P1 क्या है, P1 नॉट क्या है, P1 नॉट पढ़ा जाता है P1 नॉट इज अ प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट, ओके, या प्योर कंपोनेंट फर्स्ट का प्रेशर उसे माना जाता है और x1 is a mole fraction of first component। तो इधर क्या होगा, P2 नॉट क्या होगा, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सेकंड, और x2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड कंपोनेंट। लेवल 10 ये होता है उसके अंदर। तो अभी देखिए ना, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने सॉल्यूशन दिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट के x1 इतने मोल्स है और सेकंड कंपोनेंट के x2 इतने मोल फ्रैक्शंस है, सॉरी मोल फ्रैक्शंस। फर्स्ट कंपोनेंट के x1 इतने मोल फ्रैक्शंस है और कंपोनेंट 2 के x2 इतने मोल फ्रैक्शंस है। और अगर वो अकेला लेते हैं तो उसका प्रेशर P1 नॉट है, प्योर प्रेशर अकेले कंपोनेंट का प्रेशर P1 नॉट है और अकेले सेकंड कंपोनेंट का प्रेशर P2 नॉट है, अकेले का बोल रहा हूं मैं, प्योर। और जब मिक्सचर में आते हैं तो उसे हम लोग P1 प्लस P2 कहते हैं। तो P1 इज अ प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, P2 इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। और पार्शियल प्रेशर कैसा निकाला जाता है, इसी के बारे में रॉल्स लॉ कहता है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ partial pressure of any component is the product of pressure of its pure component into its mole fraction. Pressure of its pure component into its mole fraction is nothing but the Rolle's law. So this is partial pressure of first component. So partial pressure of first component according to Rolle's law क्या है? तो pressure of its pure component into its mole fraction. Partial pressure of second component क्या है? तो pressure of its pure component into its mole fraction. That is what we can say. So this is, you can say, Rolle's law. तो Rolle's law का statement आता है, Rolle's law ये कहता है कि partial pressure of any individual component is the product of pressure of its pure component into its mole fraction. जितने भी mole fraction है वो into उसके pure component का जो pressure होता है वो। Say for example, हम water की बात करते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं water boils at 100 degree Celsius. Water boils at 100 degree Celsius. तो 100 डिग्री सेल्सियस को वाटर बॉइल होता है, मतलब वाटर 1 atm इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है। वाटर एक्सर्ट्स 1 atm प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो 1 atm ये प्योर वाटर का प्रेशर है एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मैटर करेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर हम कम ज्यादा करेंगे तो प्रेशर भी कम ज्यादा हो सकता है। सो वाटर एक्सर्ट्स 1 atm प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का प्रेशर है। अभी इस वाटर के अंदर हम कुछ मानो इथिल अल्कोहल मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर वाटर का प्योर प्रेशर उतना ही रहेगा 1 atm, अल्कोहल का प्योर प्रेशर जो होगा वो अलग होगा। समझ रहे हैं आप लोग? सो इन दैट सेंस वी कैन हैव दिस कंपोजिशंस। तो यहाँ पे दो चीजें आती है। नंबर 1, दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is nothing but the sum total of partial pressure of all components comprising the solution. Solution pressure is nothing but the sum total of partial pressure of all components comprising the solution.
अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट होते थे P1 plus P2 plus P3 होता, हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं P1 P2 P3 plus P4 होता, हमारे पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है P1 P2 plus up to Pn, इतना बनेगा। और जितने कंपोनेंट्स हमारे पास है उतने के यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आएंगे P1 P2 P3 up to Pn, और वो हमेशा क्या रहेगा P1 not into x1, so P2 not into x2, P3 not into x3, या Pn not into xn, Pn not into xn up to nth one. Clear with this? So this is called as, you can say, Raoult's law. So what is a Raoult's law? Raoult's law states that the partial pressure of any individual component is the product of pressure of its pure component into its mole fraction. It's called as a Raoult's law. Clear with this? Hope so everyone amongst you got it. Now we have calculated P1 here, P2 we have calculated here. So total pressure क्या होगा फिर देखिए, total pressure of solution is equal to, we have P1 plus P2. P1 का वैल्यू कितना है, you can see here P1 not x1, P2 का वैल्यू कितना है P2 not into x2. So this is the total pressure. So total pressure is equal to, ये हम लोगों को मिल जाता है। क्या बताते? So this is the formula जो हम लोगों को मिल जाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर अगर हमें निकालना है तो we have to have this formula, और this formula is only for binary solution having 2 components. आप समझते हो, अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P is equal to P1 not x1 plus P2 not x2 plus P3 not x3 up to Pn not xn, इतना बन सकता है, जितने कंपोनेंट उतने बनेंगे। This is the formula for binary solutions. Clear with this? So ये है, we can calculate the pressure. This is nothing but the pressure. Now हम बेसिक टॉपिक देख रहे हैं, वेपर प्रेशर। बेसिक टॉपिक देख रहे हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तभी होगा when that substance will vaporize, that substance will be a volatile substance. हमने कंसीडरेशन यहाँ पे किया था, we have taken the solution of first and second component and both components are volatile. ये both components are volatile, the P1 not x1 भी होगा और P2 not x2 भी होगा, दोनों का कुल मिला के होगा हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। So this is the vapor pressure of solution. This is the vapor pressure of solution, which is the sum total of P1 not x1 plus P2 not x1. Clear with this? अभी हम मानते हैं कि इसमें से सिर्फ एक ही वोलाटाइल है, कोई तो एक ही वोलाटाइल है। मानो फर्स्ट इज वोलाटाइल, अगर फर्स्ट कंपोनेंट वोलाटाइल है, पहली केस है फर्स्ट कंपोनेंट इज वोलाटाइल, तो सेकंड कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल मानते हैं हम लोग। सेकंड कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल अगर मानेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल, तो ये नॉन वोलाटाइल है, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सर्ट द प्रेशर, तो इस प्रेशर विल बी 0, इसका प्रेशर 0 होगा, तो दिस P विल बी P1 not x1, दिस फैक्टर विल बिकम 0, ये 0 बनेगा। समझ रहे आप लोग? सो सिर्फ यही वोलाटाइल, ये वोलाटाइल नहीं है, so this is not going to exert the pressure, this will exert the 0 pressure and only this substance will exert the pressure, and that's why उस केस में वेपर प्रेशर विल बी P is equal to P1 not x1। ये है केस, उल्टा करते हैं हम लोग। सेकंड केस है, सेकंड कंपोनेंट इज वोलाटाइल, और सेकंड कंपोनेंट वोलाटाइल मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉन वोलाटाइल, उस केस में दिस फैक्टर विल बी 0 एंड दिस विल बी प्रेजेंट, so you can say P is equal to P2 not into x2। समझ रहे आप लोग? So जैसे मैंने बताया कि when we are talking about vapor pressure के अंदर 3 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं। नंबर 1, पहला, both solutions are volatile, दोनों प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो टोटल प्रेशर इज लाइक दिस वन, है ना। और सिर्फ ये वाला वोलाटाइल, फर्स्ट वोलाटाइल है, तो प्रेशर इज इक्वल टू P2 नॉट into x2, और ये वाला केस है सेकंड इज वोलाटाइल, तो सेकंड वोलाटाइल ये 0 बनेगा, तो P is equal to P1 not x1 like this one. Okay, so this is non-volatile, this won't exert the pressure, only this will exert the pressure. So this is the first condition, this is second condition and this is the third condition. तो हमें जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो सॉल्यूशन के अंदर कंडीशंस क्या है, either both are volatile, either any one of the volatile, accordingly we'll have this solution pressure, तब जाके हमारे पास solution pressure आएगा। Clear with this? So this is what we can say. So this is the formula, or this is the mathematical way how we are going to calculate the vapor pressure of the solutions, depending upon either both components are volatile, either any one amongst them is volatile, and the other must be a non-volatile. These are the only 3 possibilities you can say, और तीनों के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिपेंड कर सकता है। Clear with this? As well as मोल फ्रैक्शन के अंदर मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था जो बेसिक फॉर्मूला है,
मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा 1 का होता है, और हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज यू कैन से x1 plus x2 is equal to 1. ओके, x1 plus x2 is equal to 1. तो होता क्या है, being it is a volatile, being it is you can say fraction, so x1 is a mole fraction of solvent, x2 is a mole fraction of solute, and this fraction must be equal to 1. This fraction must be equal to 1. तो सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो हमने इसका 0.5 वैल्यू लिया तो दिस हैज टू बी 0.5, कुल मिला के 1 आता है. अगर इसका 0.7 है तो दिस हैज टू बी 0.3 इन ऑर्डर टू हैव 1. समझ रहे आप लोग? तो अगर x1 बढ़ेगा तो x2 अपने आप कम होगा, और x2 बढ़ेगा तो x1 अपने आप कम होगा, क्योंकि x1 plus x2 must be equal to 1. ये फॉर्मूला है. अभी इस फॉर्मूला में हम x1 निकाल सकते हैं, x2 भी निकाल सकते हैं. अगर मुझे x2 निकालना है तो क्या होगा, x2 is equal to 1 minus x1, है ना? x2 निकालना है तो 1 minus x1 होगा. तो क्या हम इसे यहाँ पे रख सकते हैं? इसमें से किसी भी फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं. आप x2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो, x1 का भी निकाल सकते हैं. अभी मैंने x2 क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के साथ डील करते हैं. सोल्यूट हमारे लिए मैटर करता है, सॉल्वेंट जो भी होगा, बट सोल्यूट हमारे लिए मैटर करेगा. दैट्स व्हाई x2 लिया. तो सोल्यूट यहाँ पे, तो सोल्यूट के बजाय हम लोग x1 यहाँ पे रख सकते हैं, या उल्टा अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस x2 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं लाइक दैट, तो वो सब कुछ यहाँ पे क्या होगा, तो p इज इक्वल टू px1, x1 का वैल्यू ये है, so this is 1. So can we put it here? So p1 not in bracket 1 minus x2, है ना, प्लस p2 not x2, ऐसा आएगा. इसे अगर सॉल्व करते हैं तो p1 not माइनस p1 not x2 प्लस p2 not x2. अब ये x2 x2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग. तो इन दैट सेंस p इज इक्वल टू, हम ऐसा कर सकते हैं, p1 not प्लस p2 not पहले ब्रैकेट में x2 प्लस p1 not. ये हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं. सो इसके अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. अगर हमने ये वैल्यू पिकअप किया, तो ये x2 का वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो इक्वेशन x1 के फॉर्मेट में आएगा. सो वी कैन ब्रिंग दिस एक्सप्रेशन either in the format of x2 either in the format of x1. अभी x2 के फॉर्मेट में क्यों लिया मैंने बताया, we are dealing with the solute. सोल्यूट की कितनी मात्रा उसके अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. That's why this is the modification what we can bring it here in this formula. बेस फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला डिराइव होता है इससे, दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 plus P2, P1 यहाँ पे P2 यहाँ पे, ये वैल्यू हमने रख दी है, हम सॉल्व कर सकते हैं. कंडीशन कौन सा है हमारा कंडीशन कौन सा है, इसके हिसाब से ये फॉर्मूला ट्विस्ट होगा. ओके, और जनरली हम लोग सोल्यूट के लिए निकाल सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ x2. जनरली सोल्यूट के लिए निकालते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ x2. वी कैन कैलकुलेट इट इवन फॉर x1. क्लियर विद दिस? So this is the way how we can calculate the solution pressure. Now इसके graphical representation है, बहुत बढ़िया graphical representation है, वो हम देखते हैं किस तरीके से आता है graphical. Sir, yes please. Sir वो लास्ट में p is equal to minus p1 not plus p2 not x2 plus p1 not होगा ना? अरे हाँ, माइनस, यहाँ पे माइनस आया नहीं, माइनस p1 not, p2 not, हाँ ऐसा आएगा, बराबर है ये, because माइनस साइन यहाँ पर है ना. क्लियर? yes sir. हाँ, अभी करेक्ट हुआ, राइट. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, if we are set to derive the Raoult's law, so till which step we have to write? Up to this one. Because मैंने कहा कि हमें ना जनरली सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा. देखिए ना, अभी हम घर में चाय बनाते हैं, और घर में चाय बनाते समय चाय मीठा, फेन, है ना, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, शुगर के अंदर. जितना ज्यादा शुगर होगा उतना मीठा चाय बनता जाएगा, जितना कम शुगर होगा उतना फेंट चाय बनता जाएगा. तो हमारे लिए चाय में कितना पानी पुट किया इससे ज्यादा मैटर करेगा कितना शुगर हमने पुट किया, सोल्यूट पुट किया. सो दैट्स व्हाई केमिस्ट्री के अंदर सोल्यूट इज गोइंग टू मैटर. मतलब आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करने हैं. ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एंड दैट्स व्हाई x2 तक ये डिराइव करना है. ठीक है, अभी जनरली आपको ना ये नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ. अभी जो चल रहा है ना, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको नहीं पूछा जाएगा. आपको रॉल्स लॉ पूछा जा सकता है, जस्ट स्टेटमेंट ऑफ द रॉल्स लॉ. और जब कभी आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है तो दैट स्टेटमेंट हैज टू बी सपोर्टेड ऑलवेज विद एग्जांपल और फॉर्मूला, व्हिचएवर इज दैट. सो रॉल्स लॉ क्या है, तो रॉल्स लॉ यहाँ पर है. दिस इज नॉट द रॉल्स लॉ, इट इज अ डाल्टन्स लॉ. रॉल्स लॉ क्या कहता है,
रॉल्स लॉ ये कहता है, ये वाला इधर, ये दोनों में से कोई भी चलेगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर है, रॉल्स लॉ जनरल होता है। और रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, P1 P2 P3 कोई भी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट होगा फर्स्ट, सेकंड होगा सेकंड, थर्ड होगा थर्ड, या nth होगा तो nth, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम Pn नॉट इनटू xn ऐसा भी कर सकते हैं अप टू द nth कंपोनेंट, समझ रहे आप लोग? सो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट और ये दो सफिशिएंट है आपके लिए। हाँ, वो अगर बोलते हैं आपको कि डिराइव द डाल्टन्स प्रेशर और टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो लॉ के साथ साथ आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और उसके लिए ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, ये वाला पहला। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज P1 plus P2 इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। मेंशन करना पड़ेगा बाइनरी सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दो कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन आएगा तो तीन कंपोनेंट्स आएंगे, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन आएगा तो चार आएंगे। क्लियर विद दिस? सो यू हैव टू, अगर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसके ऊपर आपको आंसर लिखना है। दैट वाज अ वेरी राइट क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। तो स्टेटमेंट और ये रॉल्स लॉ अगर पूछा जाए और आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हो तो आधा मार्क्स काटा जा सकता है, क्योंकि रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट इज सपोर्टेड विद दिस वन, ये उसके साथ आना ही आना है, भले वो नहीं पूछेंगे, लिखना है। और अगर वो कहते हैं कि डिराइव द डेरिवेशन फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन, बोथ आर वोलेटाइल सॉल्यूशन, अप टू दिस ओके। और वी टेक्स्ट यहां तक किया तो भी चलेगा, इसके अंदर करना है आपको। क्लियर विद दिस? बट ये जो है ना, ये आपको पूछे जाने के चांसेस कम है, ये पूरा डेरिवेशन। इसी का अप्लाइड पार्ट आगे है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आगे के टॉपिक के लिए। क्लियर विद दिस? ना इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट मैटर्स अ लॉट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तीन ग्राफ यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब दो तरीके से उसे रीड करना है, समझिएगा। स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, जनरली ये लाइन अगर नहीं है, ये लाइन, ये ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, सपोज दैट। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और एक दूसरा एक वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे हमें वो जरूरी है। कैसा रीड करना मैं बताता हूँ। सो दिस इज, ये जो है, दिस वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द प्रेशर, that is vapor pressure. Vertical line, that is y-axis. Y-axis indicates the vapor pressure, and this indicates the mole fraction. X-axis indicates the mole fraction. This also indicates the vapor pressure. Vapor pressure. ये भी vapor, मतलब ये vapor pressure है, ये भी vapor pressure indicate करता है, लेकिन कैसा? क्योंकि हमारे पास दो components है, P1 and P2, and that's why इसका आपको समझना है। Okay. अभी हम ऐसा मानते हैं कि here x1 is equal to 1 और x2 is equal to 0। अब देखिए, ये ओरिजिन है, हमारा ग्राफ का ओरिजिन है, और इस ओरिजिन के साथ हो क्या रहा है? इस ओरिजिन के साथ x1 का वैल्यू 1 है, तो x1 डिक्रीजेस हियर, x1 क्या हो रहा है? इस तरफ इंक्रीज होता है, मतलब इस तरफ डिक्रीज होता है, और x2 यहाँ पे 0 है, मतलब x2 दिस इज फॉर x1, और x2 इंक्रीजेस टू दिस साइड, सॉरी x2 इंक्रीजेस टू दिस साइड, x2 इंक्रीज होता है। तो अब देखिए, ओरिजिन से इस तरफ जा रहे हैं, तो x1 यहाँ पे 1 है, जो यहाँ पे कम कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, तो हियर x1 विल बिकम 0। समझ रहे हैं आप लोग ग्राफ के ऊपर? यहाँ पे x1 का वैल्यू हाईएस्ट है, मोल फ्रैक्शन 1 माना हमने, वो दैट डिक्रीजेस टू दिस साइड, तो x1 बिकम्स 0। x2 जो यहाँ पे 0 है, दैट इंक्रीजेस टू दिस साइड, तो इट बिकम्स x2 इज इक्वल टू 1। हाईएस्ट लेवल 1 हमने माना, उसके बीच हम कितना भी कर सकते हैं इसका वैल्यू, x1 का x2 का, बट हमने उतना माना, उसका रेंज 1। तो x1 डिक्रीजेस टू दिस साइड, और x1 जब डिक्रीज होता है तो x2 बढ़ता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं x1 plus x2 must be equal to 1। Am I right? So अगर मैं ऐसा सेंटर पॉइंट लेता हूं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट पे इस तरफ x1 है, इस तरफ x2 है, 0.5 रहेगा। So x1 is 0.5 और x2 is again 0.5, that is you can say 1 आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? So that's why इस यहाँ पे कहीं भी आप पॉइंट शिफ्ट करते हो, यहाँ पे पॉइंट लेता हूं मैं, तो यहाँ पे देखिए कि x1 छोटा होगा और x2 ज्यादा होगा, मतलब मानो x2 0.7 है तो x1 0.3 होगा, कुल मिला के वो 1 ही आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस ग्राफ के ऊपर x1 डिक्रीजेस टू दिस साइड, एट द सेम टाइम x2 इंक्रीज चला जाता है, तो इस ओरिजिन पे x1 is equal to 1
और जब x1 1 है तो ये 0 होना है क्योंकि टोटल इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए ताकि टोटल इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। आपके बुक के अंदर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप आपका बोर्ड का बुक देखते हो तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद समवेयर उन्होंने x1 ही लिखा हुआ है। यू जस्ट चेक आउट योर बोर्ड बुक, जो नेट पे है बुक देखिएगा, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो दैट्स व्हाई करेक्ट इट। x1 जब 1 है तो x2 मस्ट बी 0 क्योंकि दैट हैज टू बी इक्वल टू 1, और x1 जब 0 तो x1 2 मस्ट बी इक्वल टू 1, और इन बिटवीन फिर अगर ये 0.7 बनेगा तो ये 0.3 बनना है, लाइक दैट। ये इसके है, और यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है। अभी अकेला कंपोनेंट देखिए, इस ग्राफ के ऊपर देखते हैं, जैसा मैंने बताया कि x1 का वैल्यू हाईएस्ट है और इसका वैल्यू 0 है, और इसका वैल्यू x2 का वैल्यू 0 है, तो दिस फैक्टर विल बिकम 0, तो this will be highest pressure will be highest pressure, and this is nothing due to P1. So suppose this is the pressure which is P1 naught, this is the highest pressure P1 naught which is shown by only first component. P1 naught is a pure pressure, P1 naught is a pure pressure of component first, x1 का pure pressure है, okay। और इस कंडीशन पे आते हैं, इस कंडीशन पे देखिए x2 का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो सपोज हियर है ना, अभी x1 0 है, तो दिस फैक्टर विल बिकम 0 and only it will show the pressure, only this factor will show the pressure, so we'll be having this pressure, this is nothing but the P2 naught. P2 naught is a pure pressure of second component, first component का pressure 0 है because it is x1 is equal to उसके मोल फ्रैक्शन हाई ही नहीं है, और उसके मोल फ्रैक्शन हाई नहीं है तो प्योर कंपोनेंट का प्रेशर रहेगा। क्लियर विद दिस? ये लाइन हम लोग जोड़ सकते हैं, लाइक दिस वन, इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, ओके, ये लाइन हम जोड़ सकते हैं, और हमारा जो ये रहेगा ये वाला, so this will be P1 is equal to P1 plus P2, so ये है solution pressure। Solution pressure must, concept है, solution pressure must lie always between P1 naught and P2, must lie always between P1 naught and P2, इसके बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर P1 कम होगा तो P2 बढ़ेगा और P2 कम होगा तो P1 बढ़ेगा, so that's why solution pressure always lies in between P1 naught and P2 naught। Graphically समझ में आ रहा है आपको? This formula and this is the graph. This graph is vapor pressure versus mole fraction. Vapor pressure versus mole fraction. Here at this origin, number of mole fractions of first components are highest and second component is 0, and that's why it has the highest pressure P1 naught. At this origin, x1 naught is 0, so its pressure is 0. So pressure is only due to x2, that is P2 naught. So this is a pure pressure of pure component second. इसका ही pressure है, और solution pressure always lie in between. इसके अंदर रहेगा। और एक बात, ये मोल फ्रैक्शन देखिए ना, बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, x1 डिक्रीज हो रहा है, x2 इंक्रीज होता जा रहा है, तो x1 अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो दिस प्रेशर मस्ट डिक्रीज एंड बिकम 0 हियर। इज इट ट्रू? P1 नॉट जो यहाँ पे हाईएस्ट है बिकॉज ऑफ x1, और जैसे हम लोग इस तरफ मूव करते हैं तो x1 कम होता जाएगा, x1 कम होता जाएगा तो P1 नॉट कम होता जाएगा, सो दिस इज द पॉइंट वेयर x1 इज इक्वल टू 0, तो P1 नॉट मस्ट बी 0। इज इट क्लियर? और इस तरफ से देखते हैं, ये प्रेशर जो हाईएस्ट है x2 के कारण, इस तरफ x2 डिक्रीज होता जाता है, तो इट मस्ट फॉल डाउन टू दिस वन, लाइक दिस वन। सो हियर P2 नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0, P2 नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। होप सो एवरीवन इज गेटिंग दिस ग्राफ। दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके साथ और दो ग्राफ देखने हमें, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इज देयर एनीवन अमंगस्ट यू हु डिडंट गॉट दिस ग्राफ? प्लीज एवरीवन लेट मी नो, एवरीवन गॉट दिस ग्राफ? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर हमने एक ग्राफ निकाला हुआ है, जिस ग्राफ के अंदर हमने देखा कि मोल फ्रैक्शंस आइदर डिक्रीज होते हैं आइदर इंक्रीज होते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1, और सो सॉल्यूशन प्रेशर लाइज इन बिटवीन दिस टू लाइंस P1 naught and P2. P1 naught decreases as the mole fraction decreases and P2 naught also decreases as the mole fraction x2 decreases. अगर ऐसा मूव करते हैं तो x2 डिक्रीज इंक्रीज होता जाता है तो P2 इंक्रीज होता है, दिस इज द हाईएस्ट, ओके। और इस तरफ से आते हैं तो x1 इंक्रीज होता जाता है तो it increases, this is the highest point P1 naught, and the solution pressure lies in between this one. Now today's time is over, tomorrow we have to discuss with the next, that is nothing but you can say deviation, positive deviation, because this is very ideal condition. सब इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, this is very ideal condition, never no one always speaks truth, somewhere we lies for any of the reasons. So how is the negative deviation, how is the positive deviation, that we'll discuss in tomorrow's lecture, but this graph has to be understood. So I will everyone please थोड़ा सा रीड करके समझ के आइएगा, कल हम लोग उसका डेविएशन दे देंगे। Till then, thank you very much, good day. Thank you, sir. थैंक यू।